Hello everyone, welcome again to 12 Minutes to CLAT. So before starting today's session, I would like all of you to look at this very small video first. So you all must have watched this video somewhere on social media because there were a lot of memes that came out of this video. So this video is of a girl who is showcasing her yoga skills in front of the parliament in Myanmar. ठीक है, and while she is doing this, वो जो पीछे से black cars जा रही थी, those cars were army cars which were actually going to overthrow the democratically elected government in Myanmar. Okay, so if an army of a particular country overthrows the democratic government of any country, it's called a military coup. ठीक है, जो COUP है, it's pronounced as coup. तो ये पाकिस्तान में भी हो चुका है when परवेज मुशर्रफ was the army general as well as the president of पाकिस्तान. सो ऐसी काफी सारी कंट्रीज में हो चुका है एंड दिस वेरी रिसेंटली हैपेंड इन म्यांमार इन February 2021. Okay, so we'll understand as to why did it happen और actually क्या reasons हो गए थे इसके. But for that we'll have to understand कि म्यांमार की हिस्ट्री क्या रही है with the military and why it actually happened. We also understand in the end of the video कि बाकी जो कंट्रीज है दुनिया के इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए एंड सो ऑन, इनके क्या रिएक्शंस रहे ऑन दिस मिलिट्री कूप दैट हैपेंड रिसेंटली. So let's first start with a bit of background history of Myanmar. So Myanmar got its independence from the British Raj in 1948, just 1 year after India did. ठीक है, तो almost India के टाइम पे Myanmar was independent. Now the problem was that in 1962 the military took over the government. ठीक है, वहां पे कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी. 1962 से वहां मिलिट्री की गवर्नमेंट थी जो कि बेसिकली मिलिट्री ही उसको गवर्न करती थी. एंड दिस एक्चुअली कैरीड ऑन टिल 2011. सो फॉर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 50 years वहां पर मिलिट्री ही था जिसका राज था. एंड इन 2008 व्हाट मिलिट्री डिड वाज they actually formed a constitution of Myanmar. तो क्योंकि वहां के लोग बहुत डिमांड करने लगे that we should have a democratically elected government. So they actually made a constitution for Myanmar. उस constitution में क्या था that 25% of the seats even in the democratically elected government जो आगे होने वाली थी म्यांमार में will be reserved for the army people. So army was obviously going to have a direct or an indirect impact on the government of Myanmar always because of this particular provision. Now हुआ क्या, पहली बार जब इलेक्शंस हुए म्यांमार में दिस हैपेंड इन 2010. ठीक है, तो 2010 में जब इलेक्शंस हुए सो द पार्टी कॉल्ड USDP, यूनियन सोलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, वन द इलेक्शंस. इस पार्टी की खासियत क्या थी दैट दिस पार्टी वाज प्राइमरली बैक्ड बाय द आर्मी. ठीक है, ये बेसिकली आर्मी की पार्टी थी. तो अब आर्मी बेसिकली रूल में नहीं थी बट जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई वो भी आर्मी की थी एंड दिस गवर्नमेंट गॉट एन ओवरवेलमिंग 80% वोट. तो ये काफी उस टाइम एलिगेशंस थे दैट दीज वोट्स वर एक्चुअली फोर्स्ड, ये असली वोट्स नहीं है. ठीक है, और पीपल वर एक्चुअली मेड टू डू दिस, दे वर मेड टू वोट इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी. तो ये 2011 में वहां पर आ गई थी एंड एक्चुअली रूल्ड फॉर 5 years. 2015 में वहां पे फिर से इलेक्शंस हुए. दिस टाइम ऑन्ग सैन सूची एक बहुत बड़ा नाम है इन म्यांमार. ऑन्ग सैन सूची इज पार्टी कॉल्ड NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वन द इलेक्शंस in 2015. However, the problem was that Aung San Suu Kyi could not become the president of Myanmar because जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना म्यांमार का वो कहता है कि यू कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार इफ एनी ऑफ योर स्पाउस, बेसिकली आपकी हस्बैंड या वाइफ, or your child or your husband or anybody for that matter is a citizen of any other country other than Myanmar. ठीक है, now the problem is that Aung San Suu Kyi has two sons who are not citizens of Myanmar, they're citizens of some other countries. Therefore she could not become the president of Myanmar in 2015. So in her place Tin Kyaw was made the president of Myanmar and she was given a special position, नई position बनाई गई called state counselor. ठीक है, स्टेट काउंसलर के बेसिकली जो रूल्स थे वो प्राइम मिनिस्टर जैसे थे. जो ऑन्ग सैन सूची वाज मेड द स्टेट काउंसलर. अब 5 साल बाद 2020 में इलेक्शंस हैपेंड अगेन NLD वन द इलेक्शंस. इस बार प्रॉब्लम ये हुई दैट द आर्मी सेड दैट दीज इलेक्शंस वर नॉट करेक्टली डन, नॉट प्रॉपरली डन, एंड आज द इलेक्शन कमीशन टू प्रूव कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं
ये ठीक से हुए हैं, ठीक है। तो इस बार जैसे फिर से एनएलडी इलेक्शन जीत गई, इट वाज ऑंग सैन सूचीज पार्टी, बट ऑब्वियसली शी कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो इस बार जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था विन मिंट, ठीक है। ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन नवंबर 2020, वेरी रिसेंटली। अब ऑब्वियसली एलिगेशंस थे आर्मी की तरफ से कि द इलेक्शंस हैव नॉट टेकन प्लेस प्रॉपर्ली, सो दे आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन कि आप प्रूव करो कि जो इलेक्शंस हुए हैं ये प्रॉपर्ली हुए हैं, और उनको एक कट ऑफ डेट दे दिया कि आप 31 जनवरी 2021 तक प्रूव करो कि जो इलेक्शंस हुए हैं प्रॉपर्ली हुए हैं। Obviously, nobody can prove कि elections properly हुए. How do you prove that? Okay, so election commission could not prove the कि elections properly हुए. उसके एक ही दिन बाद जो कट ऑफ डेट था 31 जनवरी 2021, उसके एक दिन बाद ऑन 1 फरवरी 2021 आर्मी टुक ओवर द गवर्नमेंट, इट बेसिकली ओवरथ्रू द गवर्नमेंट, और पूरे म्यांमार में उन्होंने एक साल की इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। और इस एक साल बाद इलेक्शंस वापस से होंगे अब म्यांमार में। और जो उनका आर्मी चीफ है, दिस पर्सन इज कॉल्ड मिन यॉन लैंग, he actually became the president for now, ठीक है। एक साल तक he will rule because he is the army chief, तो आर्मी ने ओवरथ्रो किया है। सो दिस इज कॉल्ड अ मिलिट्री कू, जो अभी म्यांमार में हो गया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वर सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। इनफैक्ट वहां पे बैंकिंग सर्विसेज काफी सस्पेंड हो गई थी, इस वजह से एटीएम्स के बाद बहुत बड़ी लाइन लगने लग गई थी। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ वेरियस countries in the world with respect to this military coup that happened in Myanmar, ठीक है। इसको यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार एंड नो आर्मी कैन ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसे अपने मन से। सो दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू इम्पोज सर्टेन सैंक्शंस ऑन म्यांमार, ठीक है। सैंक्शंस का मतलब होता है कि काफी सारी चीजों से बेसिकली आप उनको पनिश कर सकते हो इन अ वे कि कुछ कंट्रीज के, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि ट्रेड रिलेशंस होते हैं, राइट। सो ट्रेड रिलेशंस वेयर इन कुछ कंट्रीज इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है चीजों को, सो आप उनके इंपोर्ट्स ही लेना बंद कर दो, ठीक है ना। आप उनको जहां से जो सामान आ रहा है वो लेना बंद कर दो, अपना सामान उस कंट्री के लिए एक्सपेंसिव कर दो। सो दीज काइंड ऑफ सैंक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड, ओके। ये एक एग्जांपल था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैंक्शंस दैट दे हैव इम्पोज्ड, दे हैव नॉट इम्पोज्ड एनी सैंक्शंस सो फार, बट ये एक पर्टिकुलर सैंक्शन था जो इम्पोज हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया इस पे। ओके, इंडिया एंड म्यांमार हैव ऑलवेज हैड गुड रिलेशंस and when it comes to diplomacy, and we have always had good political relations also. In fact, India provided them 15 lakh doses of COVID-19 vaccine as well, ठीक है। इस वजह से जो चाइना उनको 3 लाख वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा था वो उन्होंने एक बार होल्ड पे रख दिया था म्यांमार ने, एंड दे एक्चुअली टुक आर 15 लाख डोजेस ऑफ वैक्सीन। इनफैक्ट इनका जो नेवी फ्लीट है, इट हैज ओनली वन सबमरीन। सबमरीन पता है ना क्या होता है? सबमरीन इज सॉर्ट ऑफ अ शिप, और उसको कुछ भी कह लो, इट बेसिकली अ वाटर प्लाइंग व्हीकल जो कि पानी के नीचे भी चलता है, राइट। सो देयर ओनली वन सबमरीन कॉल्ड आईएनएस सिंधुवीर, जो कि इंडिया ने ही गिफ्ट किया म्यांमार को। सो वी हैव हैड गुड रिलेशंस विद म्यांमार, so we have not taken a particular stand in this because obviously we cannot take it, हमारे अच्छे relations है म्यांमार से काफी ज्यादा। So we have taken a balanced approach in this, okay, so we are trying to pursue it in a balanced way. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, subscribe to our channel and press the bell icon so that you don't miss any updates from us. So if you've not yet followed us on Instagram and on Telegram, please do so immediately. You can find the link in the description box because we post a lot of new updates there. We in fact post 10 most important current affairs of every month on our Telegram channel. We also have a discussion group, right, where we actually try to cater to everybody's problems also. So you can follow these groups and help yourself and prepare well for the exam. All the best.